السلام علیکم ناظرین، دنیا بھر سے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے۔ مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کا جشن منائیں نورانی لباس کے ساتھ۔ ہمارے شاندار ویڈنگ کلیکشن میں ہیں خوبصورت و نایاب شیروانیاں۔ ہمارے گروم اسٹوڈیو میں دستیاب ہیں دولہے کی خواہش کے عین مطابق روایتی ملبوسات اور ماڈرن سوٹس۔ نورانی لباس گروم اسٹوڈیو کے لیے تشریف لائیں۔ ہمارے وجے نگر کالونی، گیلیکسی ٹولی چوکی، پودیم مال ٹولی چوکی اور چادر گھاٹ ملک پیٹ برانچز پر۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. گولڈن ٹریولز ہندوستان کا سب سے بھروسے مند، قابل اور بہترین خدمات کا ریکارڈ رکھنے والے ٹریولز کے ساتھ بنائیے اپنے مقدس سفر کو آسان۔ منسٹری آف مائنورٹی افیئرز، حکومت ہند اور منسٹری آف حج عمرہ سے منظور شدہ پچھلے 33 سالوں سے حاجیوں کی خدمت کرتے آ رہے ہیں۔ مکہ میں 5 اسٹار اور مدینے میں 4 اسٹار ہوٹل میں ہے قیام۔ زون 1 جمرات سے صرف 90 میٹرز، VIP معلم A اور C سروس موجود ہے۔ بیسک پیکیج 7,20,000 شفٹنگ لی میریڈین ہوٹل، 32 دن معلم C۔ گولڈن پیکیج 9,30,000 روپے شفٹنگ VVIP معلم A۔ پلیٹینم پیکیج 10,75,000 نان شفٹنگ VVIP معلم A۔ مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروس، 3 وقت حیدرآبادی بہترین ذائقے دار کھانے، AC بسوں کے ذریعے مدینہ اور مکہ کی زیارتیں۔ گولڈن ٹریولز کا سفر منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ کرتا ہے۔ گولڈن ٹریولز، بیسائڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ وقف بل پر آج راجیہ سبھا میں ہو رہے ہیں مباحث۔ بل کی منظوری سیاہ دن ایک طبقے کو درکنار کر دیا گیا، اپوزیشن کا رد عمل۔ لوک سبھا میں وقف بل کی منظوری، مجلس کے رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بل کو مسلمانوں کے لیے ذلت قرار دیا، بل کی کاپی کو پھاڑ دیا۔ امریکہ نے مختلف ممالک پر ٹیرف لگائے، بھارت پر 26% کا ٹیرف۔ مودی ٹرمپ کی دوستی پر کانگریس نے اٹھائے سوال۔ ملکارجن کھڑگے اور منیش تیواری نے امریکی ٹیرف پر نریندر مودی حکومت کو بنایا تنقید کا نشانہ۔ تلنگانہ کے مختلف اضلاع اور حیدرآباد میں موسلادھار بارش، عام زندگی متاثر، کئی علاقوں میں پانی بھر گیا، 6 اپریل تک بارش ہونے کی پیش قیاسی۔ غزہ میں ایک بار پھر یہودی فوج کی بدترین بمباری، 24 گھنٹوں میں 80 سے زیادہ فلسطینی شہید۔ اور شام اور لبنان پر بھی یہودی فوج نے کی بمباری، جانی نقصان کی اطلاعات نہیں۔ سرخی آپ نے دیکھی، اب پیش خبروں کی تفصیل۔ لوک سبھا میں وقف ترمیمی بل کے منظور ہونے کے بعد
इसे आज राज्यसभा में पेश किया गया। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने इस बिल पर खिताब किया है। दूसरी तरफ अपोजिशन के अरकान ने वाज़ेह किया है कि जिस तरह लोकसभा में अपोजिशन ने मुत्तहिद होकर बिल की मुखालिफत की, राज्यसभा में भी इसकी मुखालिफत की जाएगी। अपोजिशन के अरकान रेणुका चौधरी, राजू शुक्ला, अमरिंदर सिंह, प्रमोद तिवारी, इमरान प्रतापगढ़ी, केटी रामाराव और दूसरे लीडर्स ने वक्फ बिल की मंजूरी को सियाह दिन करार दिया है। एसपी के राम गोपाल यादव ने कहा है कि जो ज़मीन वक्फ बोर्ड से छीनी जाएगी इसे हुकूमत सनतकारों के हवाले कर देगी। कांग्रेस के नासिर हुसैन ने कहा है कि बिल की कामयाबी 288 वोटों से हुई, जबकि इसकी मुखालिफत में 232 वोट डाले गए, तो ये कोई बड़ी कामयाबी नहीं है। इससे पहले लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल मंजूर किया गया। इस बिल की हिमायत में 288 वोट पड़े, जबकि मुखालिफत में 232 वोट डाले गए। इस तरह लोकसभा से वक्फ तरमीमी बिल पास हुआ है। अब इसे राज्यसभा में पेश किया गया है। अगर वहां से भी ये बिल पास हो जाता है तो फिर कानून की शक्ल ये इख्तियार कर लेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और जेडीएस सरबराह एचडी देवेगौड़ा ने राज्यसभा में वक्फ तरमीमी बिल के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा है कि मुझे नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद देनी चाहिए, क्योंकि जिस जायदाद का जिक्र किया गया है वो तकरीबन 1.2 लाख करोड़ रुपए का है। ये जायदादें हुकूमत ने नहीं बल्कि अतिया दहिंदगान ने दी हैं। अगर अतिया दहिंदगान ने दिया है और इसका गलत इस्तेमाल हुआ है और मफादात हैं, तो अब मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इसे मोहर लगाना चाहते हैं। इन्होंने कहा है कि अमीर लोग या वो लोग जो कम्युनिटी में इतने मजबूत हैं तो इस प्रॉपर्टी को वो निगल सकते हैं। I must congratulate the Prime Minister. Why? The property which has been mentioned, that is about 1.2 lakh crores. It is not the government has given. It is the donors has given. This property, it has been given by the donors. If the donors has given, if that has been misused, if that has been vested interest has tried to swallow, now the present Prime Minister wants to put a seal not to allow this donor's property. ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने लोकसभा में वक्फ बिल की शदीद मुखालिफत की और बिल की कॉपी को फाड़ दिया। इन्होंने कहा है कि ये बिल आर्टिकल 25-26 की खुली खिलाफ वर्जी है। इन्होंने ये भी कहा है कि वक्फ बिल मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी है। बिल पर बहस में हिस्सा लेते हुए बैरिस्टर अवैसी ने अपनी फ़िक्र ज़ाहिर करते हुए कहा है कि इस बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है। ये बयान देने के बाद बैरिस्टर अवैसी ने बिल फाड़ते हुए कहा है कि मैं गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ता हूँ। करके हमको बताइए, हम जानना चाह रहे हैं। और सच्चर कमेटी ने सर 2007 में कहा कि दिल्ली के 123 प्रॉपर्टीज की मार्केट वैल्यू 6000 करोड़ की। आज हम 2025 में आ गए। क्यों आप उन प्रॉपर्टीज के खिलाफ पड़े हुए? 1976 में उस वक्त के वजीर आजम इंदिरा गांधी लेटर लिखा, इसको आप दे दीजिए, मगर आप उसको मानने को तैयार नहीं है। तो सर और एक जो झूठ फैलाया जा रहा है, मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंट डेवलपमेंट। सर, दिस बिल टेक्स एनी मैनेजमेंट फ्रॉम द हैंड्स ऑफ मुस्लिम्स, disempowers the Waqf in comparison to any other stakeholder, takes away the efficiency of administration and hampers development. Waqf disempowerment in the name of efficiency, inefficiency is being created. The progress of development from pre-independence till today is sought to be destroyed. सर, अभी हमारे होम मिनिस्टर साहब ने फजल पुकाया केस का जिक्र किया। सर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि होम मिनिस्टर जरा अच्छे लोगों को रखकर इंफॉर्मेशन ले। फजल पुकाया का ऑबिटर क्या है? इट इज ऑबिटर, वो रेशो डेसेंडेंटाई नहीं है जो आपने कहा है। अच्छा सर, शेड्यूल ट्राइब के बारे में कहा,
क्या शेड्यूल ट्राइब में मुसलमान नहीं होते? शेड्यूल कास्ट में नहीं होता मुसलमान, शेड्यूल ट्राइब में मुसलमान होता। तो क्या आर्टिकल 25 मेरा चला गया, आर्टिकल 26 चला गया, आर्टिकल 14 चला गया, 15 चला गया, 29 चला गया? लक्षद्वीप का एक मुसलमान एमपी है, क्या उसको राइट नहीं है क्योंकि ट्राइबल है? क्या कह रहे हैं आप? इस ऐवान को क्यों गुमराह कर रहे हैं आप शेड्यूल ट्राइब के नाम पर? सर, और एक चीज जो आपको बता रहा हूं सर, अब आप जब आर्टिकल 26 से मेरा सोर्स है, तो आप सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 में से 10-11 आप नॉन मुस्लिम को बना सकते हैं। रिलीजन न्यूट्रल आपने कह दिया, और आप बनाएंगे, क्यों बनाएंगे आप? स्टेट वक्फ बोर्ड में 7 नॉन मुस्लिम होंगे और 4 मुसलमान। क्यों होंगे? क्योंकि आप लॉ में 95 में डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले सकते हैं 5 साल के लिए। आप वक्फ यूजर को आप कलेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेगा ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो वक्फ बोर्ड खामोश बैठ जाएगा, कुछ एक्शन ही नहीं लगा, क्योंकि वो आपके प्यादे हैं। अच्छा, जब आप नॉमिनेट करेंगे सर मैं मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ला सकता हूं, मगर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो नॉमिनेट होगा उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते हम। वक्फ बिल की लोकसभा में मंजूरी के तनाजुर में तमिलनाडु की असेंबली में आज डीएमके के अरकान असेंबली अपने हाथों पर स्याह पट्टियां बांधे हुए देखे गए। वज़ीर आला स्टालिन ने कहा है कि डीएमके इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना के तमाम अजला बशमूल हैदराबाद में 6 अप्रैल तक बारिश होगी। IMD हैदराबाद ने रियासत तेलंगाना के तमाम अजला में गरज चमक के साथ बारिश की वार्निंग जारी की है। इससे पहले आज हैदराबाद में तेज़ रफ्तार बारिश ने आम जिंदगी को मुतासर किया। शहर में वक्फे से होने वाली बारिश ने हद निगाह कम कर दी, जबकि बाइक सवारों ने आज फ्लाईओवर के नीचे पनाह ली। हैदराबाद के कई इलाकों में गरज चमक और दर्ज हरारत में नुमाया कमी की इत्तलात मिली है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD हैदराबाद ने हफ्ते के बाकी हिस्सों में बारिश की पेशनगोई की थी और आने वाले दिनों में हैदराबाद और इसके आसपास के अजला में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को की थी। हैदराबाद के चादरघाट और मलकपेट इलाकों में मुसलसल बारिश के बाद शदीद ट्रैफिक जैम देखी गई। बारिश की वजह से चादरघाट के फ्लाईओवर के नीचे भी पानी जमा देखा गया। बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, जुबली हिल्स, मासा टैंक, बेगमपेट, पैराडाइज, तिरुमलगिरी, कारखाना, अलवाल, सैनकपुरी, ECIL क्रॉस रोड, नारायणगुड़ा, हिमायतनगर और खैरताबाद के कई हिस्सों में मौसम गर्मा में गरज चमक के साथ बारिश हुई है। चार मीनार और इसके अतराफ वकनाफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हुई है। इन इलाकों में पानी के भरने और ट्रैफिक जैम की खबरें सामने आई हैं। IMD हैदराबाद ने अपनी ताज़ा तरीन पेशनगोई में कहा है कि आने वाले दिनों में दर्ज हरारत में मज़ीद गिरावट हो सकती है। महकमे मौसमियात ने मुख्तलिफ अजला में भी बारिश की पेशनगोई की। जिन अजला के लिए वार्निंग जारी की गई है इनमें आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद, मेदक, कामारेड्डी, जगतियाल, रजना सिरसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और जोगला मगदवाल शामिल हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। इन्होंने कहा है कि जवाबी टैरिफ का निफाज अमेरिका के लिए अच्छा रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 25 ममालिक पर जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान किया। अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान पर 29% जवाबी टैरिफ लगाया है। अमेरिकी सदर ने कहा है कि पाकिस्तान हमसे 58% टैरिफ चार्ज करता है। पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद करेंगे। अमेरिकी सदर ने भारत पर 26% जवाबी टैरिफ आयद कर दिया। अमेरिकी सदर ने कहा है कि अमेरिका तमाम दरामदात पर 10% टैक्स आयद करेगा। अमेरिका गैर मुल्की साख्ता गाड़ियों पर 25% इजाफी टैक्स आयद करेगा। ट्रंप ने कहा है कि आज का दिन अमेरिकी तारीख के अहम दिनों में से एक है। आज हमारी इक़्तिसादी आज़ादी का दिन है। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन्होंने कहा है कि अगर कोई मुल्क शिकायत करता है, कोई मुल्क चाहता है कि टैरिफ रेट सिफर कर दिया जाए, तो फिर इसे अपनी मसनूआत अमेरिका में तैयार करनी होगी, क्योंकि यहाँ कोई टैरिफ नहीं है। अमेरिका की तरफ से हिंदुस्तानी अशिया पर 26% टैक्स के लुज़ूम पर कांग्रेस का शदीद रद्दअमल सामने आया है। कांग्रेस के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर ट्रंप दोस्ती के दावे करते हैं, गर्मजोशी से गले मिलते हैं और अमेरिका ने भारत को फंसा दिया। कांग्रेस के मनीष तिवारी का कहना था कि हिंदुस्तान की ये नाकामी है। अमेरिका ने जो टैक्स नाफिज किया है, अमेरिका हमारे तलबा को
मुल्क बदर कर रहा है और वीज़े भी मनसूख कर रहा है। भारत इस बारे में मुकम्मल नाकाम हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से 25,000 टीचर्स के तकर्रात को मनसूख करने के अहकामात को बरकरार रखा। साल 2016 से रियासती हुकूमत की तरफ से चलाए जाने वाले इमदादी स्कूल्स में तकर्रात किए गए थे। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच का कहना था कि कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले पर मुदाखलत करने की कोई वजह नज़र नहीं आती। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बैंकॉक पहुंच गए हैं। हिंदुस्तानी बरादरी की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म मोदी का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी शिरकत करेंगे। बीआरएस पार्टी के लीडर व साबिक वज़ीर के.टी. रामाराव ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अराजी के तनाज़े और तलबा के एहतजाज पर रेवंत रेड्डी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए के.टी.आर. ने कहा कि यूनिवर्सिटी की अराजी हैदराबाद की आवाम की मिल्कियत है। उनका कहना था कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत को के.सी.आर. हुकूमत के अच्छे कामों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। तलबा के एहतजाज के बावजूद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी डिक्टेटर का रवैया अख्तियार किए हुए हैं। हुकूमत आज एक मजाक बन चुकी है। के.टी.आर. ने कहा है कि हम दोबारा इख्तिदार में आएंगे और यहाँ पर एक अजीम इको पार्क कायम किया जाएगा। इन्होंने सवाल किया कि आखिर राहुल गांधी तलबा के एहतजाज पर खामोश क्यों हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी रियल एस्टेट के ब्रोकर बन गए हैं। क्या राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं है कि रेवंत रेड्डी पर काबू पाएं। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक नौजवान ने अपनी बेटकार बनाई जिसे इसने ईद के मौके पर सड़क पर चलाया। ये अनोखी गाड़ी सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुई है। नौजवान ने बेट के चारों कोनों पर पहिए लगाए, इसमें इंजन लगाए और इसे चलाने का एक नया तरीका ईजाद किया जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। लोग इस गाड़ी को सड़क पर दौड़ते हुए देखकर पुरजोश थे और नौजवान की तख्लीकी सलाहियतों की तारीफ कर रहे थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और लोग इसे पसंद कर रहे हैं। इस अनोखे तजुर्बे ने लोगों को दिखाया कि तख्लीकी सलाहियतों की कोई हद नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के ज़िले इटावा से एक अफसोसनाक वाक़े की इत्तला सामने आई है, जहां हाई टेंशन लाइन से निकलने वाली चिंगारी ने 27 बीघा गुंदुम गेहूं की फसल को मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर कर दिया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जिसमें देखा जा सकता है कि गुंदुम की फसल मुकम्मल तौर पर जल रही है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब हाई टेंशन लाइन से निकलने वाली चिंगारी ने फसलों को आग लगा दी, जिससे किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। जुमेरात के रोज़ खान यूनुस पर इसराइली हमलों में 24 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए, जब गुज़िश्ता 24 घंटों में गाज़ा की पट्टी के दीगर मुख्तलिफ इलाक़ों पर इसराइली बमबारी से मरने वालों की तादाद, शहीद होने वालों की तादाद 81 हो गई। ज़राए के मुताबिक इसराइल ने गाज़ा शहर के जनूबी हिस्से में रिहायशी इमारतों को तबाह कर दिया और जनूबी शहर राफा के शुमाल मशरक़ में वाक़ इलाक़े मेराज पर शदीद फ़िज़ाई हमले किए। इसके अलावा फ़राह शहर के मुतफ़र्रिक़ इलाक़ों को शदीद गोलाबारी का निशाना बनाया। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गाज़ा की पट्टी को तक़सीम करने और मोराज राहदारी पर कंट्रोल हासिल करने का ऐलान किया। नेतन्याहू के मुताबिक ये दूसरी फ़िलाडेल्फिया राहदारी होगी। नेतन्याहू ने एक बयान में इंकशाफ किया कि इसराइल फ़ौज गाज़ा की पट्टी को टुकड़ों में तक़सीम कर रही है और बतदरीज दबाव बढ़ा रही है ताकि हमास तंजीम यरगमालियों को वापस करे। उनका मजीद कहना था कि इसराइल वसी अराज़ी पर कंट्रोल हासिल कर रहा है, हमास के मुसल्लह अनासिर को निशाना बना रहा है और बुनियादी ढांचे को तबाह कर रहा है। दूसरी तरफ इसराइल ने गाज़ा के बड़े इलाके पर कब्जा करके राफा और खान यूनुस के इलाकों को जुदा करके मोराज कॉरिडोर का नाम दे दिया है। इसराइली फ़ौज ने शाम और लुबनान पर भी फ़िज़ाई हमले किए। शामी सूबे दारुल हुकूमत में सह्यूनी हमलों में 11 अफराद शहीद और कई ज़ख्मी हो गए। लुबनान में इसराइली हमले से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसराइली तैयारों ने बुध और जुमेरात की दरमियानी शब शाम पर फ़िज़ाई हमले किए, जिनमें ख़ास तौर पर दमिश्क के शुमाल में साइंसी तहक़ीक़ी मरकज़ के अतराफ़ और हुमा शहर के इलाक़ों को निशाना बनाया गया। ये बात शाम की सरकारी खबर रसां एजेंसी सना ने बताई। उधर काबिज़ इसराइली फ़ौज ने दमिश्क में शामी फ़ौजी अड्डों और दीगर अस्करी बुनियादी ढांचे की तनसीबात पर हमलों की तस्दीक की है। इसराइली फ़ौज के तर्जमान ने
एक्स प्लेटफॉर्म पर बताया है कि फ़ौज ने हुमा और होम्स में फ़ौजी अड्डों पर फ़ौज की सलाहियतों को निशाना बनाया। इसराइल को दरपेश किसी भी ख़तरे को ख़त्म करने के लिए काम जारी रहेगा। दूसरी जानिब शामी वज़ारत ख़ारजा ने मुल्क पर इसराइली हमलों की मज़म्मत की है। वज़ारत ने एक्स प्लेटफॉर्म पर जारी एक बयान में इस कार्रवाई को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। इसी तरह दमिश्क ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो इसराइल पर दबाव डाले ताकि वो अपनी जारहियत बंद करे और बैनुल अक़वामी क़ानून की पासदारी करे। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का तैयारा आज जुमेरात को अलसुबह बुडापेस्ट के हवाई अड्डे पर उतरा। ये बात हंगरी के वज़ीर दिफा ने बताई, जिन्होंने रनवे पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर दिफा क्रिस्टो ज़ेले ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, नेतन्याहू आपका बुडापेस्ट में खैर मक़दम है। नेतन्याहू अपने इत्तेहादी विक्टर ओरबान की दावत पर हंगरी का दौरा कर रहे हैं, जो कई रोज़ तक जारी रहेगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म अपने खिलाफ बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत की जानिब से जारी गिरफ्तारी के वारंट के चैलेंज करते हुए ये 4 रोज़ा दौरा किया है, इसलिए कि हंगरी बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत का रुकन है। जुमेरात के रोज़ दर्जनों यहूदी आबादकारों ने इसराइली पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए और मुसलमानों के क़िबले अव्वल की बेहुरमती की। इस मौके पर आबादकारों ने मस्जिद अक्सा में तलमूदी तालीमात के मुताबिक मजहबी रसूमात अदा की। फ़लस्तीनी महकमे औक़ाफ़ की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि जुमेरात के रोज़ काबिज़ पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में दर्जनों यहूदी आबादकारों, इसराइली तलबा और इंटेलिजेंस एहलकारों समेत 100 के करीब इंतहा पसंदों ने क़िबले अव्वल में दाखिल होकर इश्तियालंगेज़ नारे लगाए। इसराइली फ़ौज की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में दसियों यहूदियों ने क़िबले अव्वल की बेहुरमती की, जबकि गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान 1000 के करीब यहूदी आबादकारों ने क़िबले अव्वल में दाखिल होकर मुक़द्दस मकाम की बेहुरमती की। यहूदी आबादकारों की ये दावे इंतहा पसंद ग्रुपों की अपील पर किए गए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। गोल्डन ट्रैवल्स हिंदुस्तान का सबसे भरोसेमंद, काबिल और बेहतरीन खिदमात का रिकॉर्ड रखने वाले ट्रैवल्स के साथ बनाइए अपने मुकद्दस सफर को आसान। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, हुकूमत हिंद और मिनिस्ट्री ऑफ हज उमरा से मंजूर शुदा पिछले 33 सालों से हाजियों की खिदमत करते आ रहे हैं। मक्के में 5 स्टार और मदीने में 4 स्टार होटल में है क़याम। जोन 1 जमरात से सिर्फ 90 मीटर्स VVIP मौलिम A और C सर्विस मौजूद है। बेसिक पैकेज 7,20,000 शिफ्टिंग ली मेरिडियन होटल, 32 दिन मौलिम गोल्डन पैकेज 9,30,000 रूपए शिफ्टिंग VVIP मौलिम A। प्लैटिनम पैकेज 10,75,000 नॉन शिफ्टिंग VVIP मौलिम A। मिना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विस, 3 वक्त हैदराबादी बेहतरीन जायकेदार खाने, AC बसों के जरिए मदीना और मक्का की ज़ियारतें। गोल्डन ट्रैवल्स का सफर मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा करता है। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रूपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए। मीना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में है खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादरघाट मलकपेट ब्रांचेस पर। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar.
वक्फ बिल पर आज राज्यसभा में हो रहे हैं मुबाहिस। बिल की मंजूरी सियाह दिन एक तबके को दरकिनार कर दिया गया, अपोजिशन का रद्द-ए-अमल। लोकसभा में वक्फ बिल की मंजूरी। मजलिस के रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने बिल को मुसलमानों के लिए जिल्लत करार दिया, बिल की कॉपी को फाड़ दिया। अमेरिका ने मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ लगाए, भारत पर 26% का टैरिफ। मोदी ट्रंप की दोस्ती पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। मल्लिकार्जुन खड़गे और मनीष तिवारी ने अमेरिकी टैरिफ पर नरेंद्र मोदी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला और हैदराबाद में मूसलाधार बारिश, आम जिंदगी मुतासिर, कई इलाकों में पानी भर गया। 6 अप्रैल तक बारिश होने की पेश कयासी। गाजा में एक बार फिर यहूदी फौज की बदतरीन बमबारी, 24 घंटों में 80 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। और शाम और लुबनान पर भी यहूदी फौज ने की बमबारी, जानी नुकसान की इत्तलात नहीं। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।